So let's start with now. First, we'll talk about the indices. Now, what exactly we mean by the indices and what are the problems and solutions, formulas, what exactly and we mean by the indices. Once you talk about the indices, that means first and foremost things, we have to know certain meaning. So meaning of indices. What exactly we mean by the indices? Now see, here, suppose if we write down x to the power n, and if we consider x and n, these two are natural numbers. If we consider this x and n both are natural numbers, that means what we mean by x to the power n. That means we are meaning this x we are multiplying n times. That means x into x into x into x and dot 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 it up to n factors. So if I multiply x into n factors and if I add the power, so if we just add the power of those things up to n factors, so then we will see this is first n, then 1, then 2, then 3, then 4, up to this, then it comes down to n times. So this is the way the x to the power n comes. For example, the moment we are writing AQ, that means we are writing A into A into A. That means here it is 1, here it is 1, here it is 1. So we can write it on 1 plus 1 plus 1. So it comes down to AQ. Similarly, once we come down to A to the power minus 4, that means it comes down to A to the power 4. That means it will go down. Minus means it will move down. So it means basically this is 1 plus 1 plus 1 plus 1. So ultimately it comes down to A to the power minus 4. So if it moves up, so ultimately it becomes A to the power minus 4. So this is the way it comes. Next come down to the meaning of x to the power n when x is a not a natural number, but x is a positive fraction. Number 2. Suppose x to the power n is given when we can see that x belongs to capital N. And in this case, an n is a positive fraction. So once we are considering n as a positive fraction. So if n is a positive fraction, that means suppose we are writing down, for example, we are writing down x to the power n into x to the power m. So whenever we are writing x to the power n into x to the power n, that means we are writing n plus m. So this is the way we used to write. Where m and n is a fraction. Suppose if we consider n is equal to p by q. So if that is the scenario, so in that case we have to write it in this way, x to the power n. How we can write? That is with p by q into x to the power p by q, then x to the power p by q, then x to the power p by q. So this way it will continue up to n factors. This will continue up to n factors. That means ultimately it comes down to x to the power p plus q into n. That means n into p by q. So this is the way we can write it, because here it is p by q, here another p by q, here another. So up to it moves up to n factors. So once it moves up to n factors, if we add those things, that means p by q plus p by q plus p by q, this way up to n factors. So if you move up to n factors, so ultimately it comes down to this one. So I get this one. So this is the way we can calculate these things. So that's the way we used to pick it up. If it moves up to q terms, then the scenario would be different. Now, if you just take into consideration of another point. So case 1, suppose case 1 we are considering here, for examples, we are writing q root q of x to the power p. What does it mean? Now, once we are writing these things, that means here this sign means 1 by q. That means here we can write down x to the power p whole to the power 1 by q. This means this. So actually it comes down to x to the power p by q. So this is the way we can represent these things. If you go by the numerics, if you go by and use the numerics, then you can say suppose this is 3 and x to the power 7. So that means we are writing x to the power 7 by 3. So this is the way we used to write. Suppose if we take a figure like this,
This is x cube. That means we used to write it in the form of x to the power 3 by 7. So this is the way we usually write it down. Okay. This is the process of writing these things. So this is the way. Now the question case 2 is this. Suppose if it is seen that n is equal to your p by q, but here if you see that p and q are non-zero. So these are the non-zero positive integers. These are the non-zero positive integers. So that is normally happen over here. But in case, if we find in the case 2, if we find that n is equal to 0, that means we can say p by q is equal to 0. So if I find the value of p by q is equal to 0, so x to the power n, it comes down to x to the power p by q, and that is equal to x to the power 0. So in that case, what would be the value of x to the power 0? So we can say the value it coming down to 1, provided x is not equal to 0. Because if x is equal to 0, so in that case, it will become x to the power 0 means it comes down to 0 to the power 0, which will be equal to 0. So that's why you have to mention that x is not equal to 0. At that time, we are getting the value, that is x to the power 0 is equal to 1. So this is the way we can understand. So why we are not writing it is 0? Because x to the power 0 will be equal to 0, provided x is equal to 0. So if x is equal to 0, so 0 to the power 0, it comes down to 0. So that's why we are writing down these things. Okay. So this is one of the cases. Now, this is main cases. Now, another important factors which we write over here, that is once we are multiplying, for example, we are multiplying x to the power n into x to the power p into x to the power q into x to the power r. So if you see that your base is same, all the base are same, but the power which is mentioned over here that are different. It may be same or it may be different. But if I find that the base is same, that is x in each and every cases, then we can write it down. The power will be added. That means n plus p plus q plus r. So this is the way we can add the power over here. Clear? So this is the way we can add the power over here. Now coming down to the point number 8.2. Suppose you have been given a to the power m, just like this. I'm getting examples over here. Suppose x is q, and here it is given x to the power minus 7. Here it is given x to the power 4. Here it is given x to the power 5. So if you add these things, it comes down to 3 minus 7 plus 4 plus 5. So ultimately, if we add these things, so 4 plus 5 is 9, 9 plus 3 is 12, 12 minus 5, so it comes down to x to the power 5. So 4 plus 9 minus plus 3, 12 minus 7, it comes down to x to the power 5. So we'll write them down in this way. Moment we will divide these things, that means if the base is same, that means here it is a, here also it is a, then it will come down to a to the power m by a to the power n, this form. So it will get subtracted. That means a to the power m minus n. That means what? That means here it is m, there it is n. Now this power is same. That means we can write it down in this form. Suppose it is given a to the power mn divided by a to the power n. So what will happen over here? Now in this case, we can write down a to the power mn divided by a to the power n. Now we know if the base is same, that means here the base is a in both the cases. So we will simply subtract it. That means a to the power mn minus n. So this will be the answer of it. So this is the way we used to represent it. So let's take a typical examples, another examples, like if n is a, now in this case, if we consider that this n is a positive, suppose if we write it down in this form, what happens over here? Let's check. So this is another situation. Now, if you see the a to the power mn, if this is given, now in this case, it is normally we used to write down, we multiply n with m. That means a to the power mn. And here it is mentioned that n is a positive integer. Suppose n is a positive integer over here. For example, suppose it is given a 3 cube. Suppose it is given 3 to the power square to the power 3.
So here we can write down in this, then 3 will be multiplied with 2. So it will be 2 into 3. So ultimately it comes down to 3 to the power 6. So don't get confused that 3 to the power squared to the power cube, that will be similar to 3 to the power 6. It will never happen. Why it will never happen? Because this means 3 to the power 2 cube means 8. So 3 to the power 8 and 3 to the power 6, these two are not same. These two are different because 3 to the power 8 is greater than 3 to the power 6. So always remember these things. Whenever we write down in this form, that indicates this one. And whenever we write down in this form, that indicates this one. So there is a difference between these two. Now come down to 8.4. So once we come down to the 8.4, so how we can write down these things? Let's check that if n is equal to p by q, which is a positive fraction. If I consider it's a positive fraction. Positive fraction means, suppose if we written a to the power m by n, so that means n is a positive fraction, so we can write down a to the power mn, and here you can write down m into p by q. So this is the way we can write it down it. So once we write down these things in this manner, so ultimately what does it means? Now it means q is 1 by, that means we can write down a to the power m into p cube root of this. So this portion we can write into this form. For example, I'm just giving another example. Suppose the value of n is a fraction. Suppose if we put the value of x fraction is 3 by 4, and if we pick up value of m is just 3. So what will happen over here? We can write down a to the power cube and whole to the power 3 by 4. So once we write down these things, it comes down to a to the power this multiplied by this, that means 9 by 4. So this one we can write down 4th root of a to the power 9. So this is called 4th root of a to the power 9. So this is the way we can represent it. So whenever we are representing n in terms of a positive fraction, in such situation, what I can do over here, that a to the power m into p by q, we can represent it into this particular form. And once we can write down into this particular form, so this one, suppose if we consider that p by q is equal to 3 by 4 and m is equal to 3, so that particular value we can write it in this particular form, that is a to the power 9 by 4. So here a to the power 9 by 4 means a to the power 9, sorry, this is 9. So this will be 9, and 4th root of, that means this indicates this is 1 by 4. That means this is equal to, actually it comes down to one other step, that is a to the power 9 whole to the power 1 by 4. So this 1 by 4 you can place like this. This is the way you can represent it. Clear? देख लो एक बार, अगर कोई questions है तो पूछो. Okay. And the second one is, if it is seen that this is a fraction, but it's a negative fractions, or maybe some negative quantity. Suppose if it is a negative quantity. Suppose if it is seen that n is a negative quantity, so in that case, a to the power mn, suppose it comes down to n. So we have considered negative quantity means, chalo मान लेते इसको minus p पकड़ लेते. So in that case, what will happen? It comes down to a to the power m multiplied by minus p. So ultimately it comes down to a to the power minus m into p. This one. So ultimately it will becomes 1 by a to the power m into p. So this is the way we have to represent these things. This is the way we can represent. And simultaneously we can also present it like a to the power m whole to the power n. So where you can say that n is a negative quantity, that means we can say n is equal to minus p by q. So this minus p by q we can represent in the form of a to the power n whole to the power minus p by q. This is the way. So how we can represent these things? That we can represent, this is minus mp by q. So that means we can represent, that is cube root of a to the power minus mp. That means we can represent, that is cube root of 1 by a into a to the power mp.
So this is the way we can represent the entire things, because here a to the power mn means m and n value is minus p by q. So if m value is minus p by q, we'll just simply multiply m with minus p by q. If I multiplied m with minus p by q, it comes down to minus mp by q. And if it is minus mp by q, so 1 by q, if I take common, that means this one I can represent in the form of minus mp, and that is whole to the power 1 by q. So this 1 by q have taken over here. So qth root of, you can probably represent it qth root of a to the power minus mp, and that is equal to 1 by a to the power mp. So this is the way we can represent this entire things. Is it clear? क्लियर है ना आदित्य? यस सर. तो उसके बाद आगे देखते हैं और क्या रूल्स हो सकता है सर. रूल नंबर 5 जो होगा 8.5 में एक रूल होगा, that is अगर a to the power n b to the power n in this form it is written, that means we can say the power is same. Here you see the base is different but the power is same, so we can write it in this form, that is ab to the power n. So for all values of n, so we can say for all values of n, we can represent it in this form. Now, this is number one. Suppose n is a positive integer. So if we consider that n is a positive integer, then we can say this thing. That means here it is a into a into a into a into dot dot up to n factors, up to n factors. And Similarly, we can say that here b into b into b into dot 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 up to n factors. So this is the way we can place it. So ultimately this coming down to ab to the power n. So this is the way we can place. That is number one. And number two, if we see that n is a positive fraction, suppose if it is a positive fraction. So if it becomes a positive fraction, then we can say ab to the power n, that comes down to ab to the power p by q. So that means we can say here a to the power p by q into b to the power p by q. So this is the way we can represent these things. So this is the overall way by which we can represent these entire things. So here depends, for example, if you take an example, suppose ab to the power, चलो मान लेते हैं n का वैल्यू हमने 3/4 पकड़ा. So it comes down to basically a to the ab to the power n means ab to the power 3/4. So ab to the power 3/4 means a to the power 3/4 and b to the power 3/4. So this is the way you can represent these things. This is the way you can represent these things. Okay. So this is the way you can represent this entire things. So some of the corollaries which we should remember over here. So corollaries, what I should remember, that is number one corollary, if it is a to the power n by b to the power n, in that case we will see that the base are different but the power is same. So we can write down a to the power n into b to the power minus n. This is the way we can represent it. So that means here we can say this is equal to a by b whole to the power n. This is the way we can represent. Corollary number two is a to the power n, b to the power n, c to the power n. So this we can write down abc whole to the power n. That is corollary number two. And corollary number three, in case if we see that there is a b, c, d and dot 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 up to n, and that is to the power n. So that means we can say this is a to the power n, this is b to the power n, this is c to the power n, this is d to the power n, and dot dot dot. This last one is n to the power n. So these are the ways we can represent this entire things. So that is the structure by which we can represent the entire portions. Now we will go by the few of the problems over here. First problem, for examples, that is the problem number 1. Now suppose it is given 4 to the power minus 5/2, that what would be the value?
What exactly you are going to do? First, we will say 4 to the power minus 5, and that is whole to the power 1 by 2. 1 by 2 means root, so we can say root over of 4 to the power minus 5. So that means we can write down it is root over of 4 to the power 5. Because it is minus 5, so we can write down 4 to the power 5. And that is means 2 square, this is 2 square, and that is whole to the power 5. This is the way you can write down 2 square, when 4 into 4 into 4, or you can represent in 4 also. That's not the issue. So if you write down these things, so ultimately what is the value which is coming over here? So here you can see this is coming to the power 4 to the power 3 by, this is a root. So you can say this is coming down to how much it comes down to, that is 2 to the power 5 by 2, this root. So the 2 to the power 5 by 2, it comes down to 2 to the power 5 and whole to the power half. So यहाँ पर root है मतलब यहाँ पर 2 है, तो 2 कट जाएगा. So ultimately once you cut it down, so what exactly, sorry, it is 2, sorry. This will be 2 to the power 5 whole square. So now here it is 2, because 2 नहीं लिखो और लिखो, इसका मतलब है basically अगर यहाँ पर p लिखोगे x, इसका मतलब x to the power 1 by p. अगर यहाँ पर q लिखोगे, so x लिखोगे, that means it is x to the power 1 by q. यहाँ पर अगर q by p लिखोगे, cube root, that means x to the power q by p. यहाँ पर minus q by p लिखोगे in this way, so that means it is x to the power minus q by p. But अगर यहाँ पर रूट खाली लिखोगे x, that means it is x to the power half. इसका मतलब है यहाँ पर अगर 2 दे जाए, 2 लिखा और नहीं लिखा मतलब सेम है. So it comes down to this. So ultimately you can write down 2 to the power 5 into 1 by 2. So 2 cut gaya, it comes down to 2 to the power 5, which is equal to 32. So this is the way we can present these things. सर हाँ बोलो. सर यहाँ पर तो 4 टू द पावर -5 है, तो फिर ये लास्ट में तो ये नॉर्मल डिजिट्स में 4 to the power -5 है ना. हाँ, इसको हम ऐसे लिखते हैं रूट ओवर ऑफ 1 by 4 to the power 5. नहीं फिर इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में ये अच्छा एक मिनट देख लेते हैं. 4 to the power 5 इसको रूट कर देते हैं, 1 by 32 होगा सर. ठीक है. सो दिस कम डाउन टू 1 by 32. ठीक है, ठीक है ना. अभी यस सर. इसमें देखो 2 to the power 5 2 स्क्वायर. अब तो ठीक है. यस सर. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई दिया जाता है, दैट इज मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है a to the power 5, क्वेश्चन नंबर 2, और इसको a to the power 3 by 4, and here it is 4 into a to the power -5. You have been asked to find the value of a to the power. अच्छा यहाँ पर वैल्यू जो निकालने के लिए बताया है वो है 1 by a to the power -3. So what is the value of this? इसका वैल्यू निकालने के लिए बताया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो इसको क्या लिखोगे, पहले लिखो a to the power 5 by 2, ये आ गया. Then it comes down to a to the power 3 by 4, ये आ गया. Then it comes down to a to the power -5 by 4, ये आ गया. अभी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दैट मीन्स a to the power 5 by 2 plus 3 by 4 minus 3 by 4 minus 5 by 4. तो इसके एलसीएम निकाल लेते, कितना आता है देखते हैं. 5 by 2 plus 3 by 4 minus 5 by 4. सो इसके एलसीएम ले लो. सो इट इज 2 माने 10, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5. सो अल्टीमेटली इट कम डाउन टू 8 by 4, इतना आ रहा है. सो दिस थिंग्स इज कमिंग ओवर हियर. तो इसको काट दो तो इट कम डाउन टू 8a स्क्वायर, माने ये 2 आ जाएगा, इट कम डाउन टू 2. तो हमको बताया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज a स्क्वायर आ रहा है, हमको इसका वैल्यू चाहिए.
तो इसका अगर वैल्यू चाहिए तो सर यहाँ पर a टू दी पावर -3 लिखो और यहाँ पर a टू दी पावर -3 लिखो, सॉरी a टू दी पावर a क्यू लिखो, a क्यू लिखो, बिकॉज हेयर इट इज a टू दी पावर -3, मतलब क्या है, इसका मतलब है a क्यू। तो अगर हमको a क्यू लिखना है, यहाँ पर हम a क्यू कर देंगे, माने इसका वैल्यू क्या है वो पूछा गया है। तो हम अगर इसको a क्यू इस क्यू के मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यू का जो वैल्यू होगा वो आएगा a टू दी पावर 5। सो दैट वुड बी द आंसर। सो a टू दी पावर क्यूब का वैल्यू होगा a टू दी पावर 5, वही होगा इसका आंसर। ठीक है, देख लिया। ओके, अब दूसरे तरफ सी प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं किस तरह का सिंप्लीफाई करते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग थोड़ा टफ प्रॉब्लम में जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम में ऐसा दिया है, सिंप्लीफाई करो। सो यू हैव बीन आस्क्ड टू सिंप्लीफाई। सपोज इट इज a टू दी पावर -2 into b into क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर दिए गए a into b टू दी पावर -3। So how to simplify these things? एटर टोटल হবে a to the power -2/2 and b to the power half, और यहाँ पर होगा a to the power 1/3, क्योंकि 3 है मतलब 1/3 होगा, और ये होगा b to the power -3/3। तो इसको काट दो, इसको काट दो, तो काटने के बाद ये हो जाएगा a to the power -1, ये है 1/3, सो +1/3, और ये हो जाएगा b to the power half -1, तो इसको ऐड कर दो। तो ऐड करने से ये जो होगा दैट विल बी a टू दी पावर -3 माने -2/3, और ये आ जाएगा b टू दी पावर -half। सो अल्टीमेटली इट कम डाउन टू 1/a टू दी पावर 2/3 into b to the power half। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये ऐसा आएगा, ठीक है ना, देख लिया, ठीक है। आइए तो देख लो, देख लिया। यस सर। ओके, अब थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं, कैसे कैसे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हमको सिंप्लीफाई पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में एक प्रॉब्लम है, हम एक्सरसाइज अभी आज ही भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। इसमें दिया है सिंप्लीफाई करो। सो दे हैव आस्क्ड टू सिंप्लीफाई दिस थिंग्स। सो सिंप्लीफाई कौन सा बताया, बोला है x टू दी पावर m + 2n into x to the power 3m - 8n डिवाइडेड बाय, यहाँ पर दिया x to the power 5m - 6n। तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है, वी हैव सीन द बेस इज सेम, तो हम इसको ऊपर उठा देंगे। दैट मींस x to the power m + 2n plus 3m - 8n minus 5m plus 6n। दैट मींस दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको हमने ऊपर उठा दिया, माने x के ऊपर पावर, दैट मींस ये दोनों प्लस हो गया, इस प्लस दिस, और माइनस करके इसको लिख दिया, दैट इज द माइनस वे यू कैन राइट डाउन दिस थिंग्स। तो माइनस किया इसलिए ये माइनस हो गया, ये अंदर का चीज ये प्लस हो गया। अभी इसका वैल्यू होगा m + 3m, 4m माइनस, दैट मींस -a, और प्लस में है 2n है -8n -6n, तो टोटल मिला के कितना रहे, +6n + 2n, दैट मींस 8n, 0 हो जाएगा माने +0, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/x टू दी पावर m। तो ये आंसर बन गया, देख लो, ठीक है ना, देख लिया। यस सर। ओके, अब थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में घुसते हैं। सिंप्लीफाई क्या स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कैसा दिया गया है देखते हैं। सर चलो मान लेते हैं इस तरीके का एक प्रॉब्लम दिया गया, जहां पर मेंशन किया गया इसको सिंप्लीफाई करो। सो दे हैव मेंशन सिंप्लीफाई दिस थिंग्स। इट इज गिवन a to the power -1 b square by a square b to the power -4 इसका होल टू दी पावर 7, और इसके साथ प्लस हो रहे
that is AQ into B to the power minus 5 by A to the power minus 2 into BQ और इसके ऊपर पूरा -5। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर जो है वो हमने एक बार देख लेते हैं कितना होता है। सर यहाँ पर होगा A to the power -7 क्योंकि दिस एंड मल्टीप्लाइड विद दिस और दिस विल मल्टीप्लाइड विद दिस माने बाई A to the power 14 होगा। सर उसके बाद ये होगा B to the power 14 बाई इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम -28। उसके बाद सर इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, सो इट कम डाउन टू A to the power -15 इनटू इसके साथ इसको मल्टीप्लाई होगा, सो B to the power 25। उसके बाद इसके साथ इसको मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई होगा, सो इट कम डाउन टू A to the power 10 इनटू B to the power -15। तो पहले सर इसको उठा लेते ऊपर में, दैट मीन्स इस पोर्शन को हम ऊपर उठाएंगे, इस पोर्शन को ऊपर उठाएंगे, इस पोर्शन को ऊपर उठाएंगे, इस पोर्शन को ऊपर उठाएंगे। कितना होगा सर? ये तो माइनस हो जाएगा क्योंकि आपका बेस जो है वो तो दोनों जगह में ये है, तो दैट मीन्स -7 -14 इनटू सर ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स B to the power 14 + 28। इस जगह में सर ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स -15 -10 और B to the power 25 है वो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 15। सो दिस इज द वे यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग्स। सर इसमें से अगर करोगे तो ये आ जाएगा -21 एंड ये आ जाएगा बेसिकली ये ऐड करने से 38 + 4 सो 42। यहाँ पर ये आ जाएगा A to the power -25, यहाँ पर आ जाएगा 40। सो ये चीज आ जाएगा। सो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सर A to the power -21 को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ से B to the power 40 को कॉमन ले लेंगे। सो इसमें से क्या होगा सर, यहाँ पर B² रह जाएगा और यहाँ पर बेसिकली 40 आ जाएगा, दैट मीन्स A to the power -21 ले लिया, दैट मीन्स -4 ये आ जाता है। सो इसको तुम छोड़ सकते हो, फर्दर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सो इट्स अप टू यू। तो वो हमने जस्ट एक बार दिखाने के लिए दिखा दिया जे कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देख लो एक बार, देख लिया आदित्य? देख लो। Yes, sir. Okay. Next come down to another type of problem, like simplification के 3-4 प्रॉब्लम देखते हैं। सर एक प्रॉब्लम दिया गया है, वहां पर लिखा गया है that x to the power l by x to the power m और इसको ऊपर में लिखा गया है l² + mn + n²। उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया x to the power m by x to the power n और उसको लिखा गया ऊपर में m² + mn + n² और नीचे में लिखा गया x to the power n by x to the power l और इसका जो पावर है उसको लिख दिया गया n² + nl + l²। सो दिस इज द वे इट इज बीन डिस्प्लेड ओवर हियर। तो इसको कैसे लिखे सर, यहाँ पर बेस जो है ना, सो दिस बेस इज x, दिस इज x। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, हियर यू कैन राइट डाउन x to the power l - m, दिस यू कैन राइट and here you can write l² + m into, अच्छा एक मिनट ये l होगा, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव रिटन m, ये l होगा, तो ml + m², ठीक है, उसको चेंज कर दिया। यहाँ पर होगा x to the power m - n और उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस इट कम डाउन टू m² + mn + n² और यहाँ पर होगा x to the power n - l और उसके साथ ये पोर्शन मल्टीप्लाई होगा, दैट इज n² + nl + l²। अभी ये पोर्शन जो है इसका एक फॉर्मूला है, पूरा के पूरा फॉर्मूला है, वो है सर अगर AQ - BQ का फॉर्मूला आप याद करें तो दिस फॉर्मूला इज A - B into A² + AB + B², इसी फॉर्मूला में है।
सो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर एल क्यू माइनस एम क्यू। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर एम क्यू माइनस एन क्यू। सिमिलरली नेक्स्ट पोर्शन को लिख सकते हैं एन क्यूब माइनस एल क्यूब। अभी इसका पावर बेस सेम है बिकॉज वी हैव सीन दैट दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x, सो बेस इज सेम। सो वी कैन राइट डाउन एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब। सो इसके साथ इसको काट दो, इसके साथ इसको काट दो, इसके साथ इसको काट दो। So ultimately it comes down to x to the power 0 that is equal to 1 provided आपको लिखना पड़ेगा x is not equal to 0। ये नहीं लिखने से ये आंसर आप नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते बिकॉज अगर x 0 हो जाता तो x to the power 0 means 0 to the power 0 1 नहीं 0 आ जाता। But here it will be 1 and why it will be 1, that reason already I have explained that why it will be 1 क्योंकि x is not equal to 0 so anything to the power 0 which come down to 1। So this is the way we can do such kind of problem। ठीक है ना, देख लिया, देख लो। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच वी कैन राइट डाउन दिस थिंग्स। अभी इस प्रॉब्लम को थोड़ा घुमा के देते हैं, थोड़ा घुमा के। कैसे सर? इस प्रॉब्लम को घुमा के हम ऐसे लिखते हैं सर, हम यहां पर लिखते हैं x टू द पावर, इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है b प्लस सी बाई सी माइनस ए टू द पावर, इसके ऊपर टू द पावर 1 बाई ए माइनस बी दिया गया। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया x टू द पावर c प्लस ए बाई ए माइनस बी एंड दिस प्रॉब्लम को हमको घुमा के लिखा 1 बाई बी माइनस सी and this one we have written x to the power a plus b by b minus c। so this problem को हम घुमा के लिखते हैं 1 by c minus a, इसको लिखा है। so how we can write down these things, इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई मतलब x to the power यहाँ पर है b plus c, यहाँ पर c minus a है, उसको a minus b से मल्टीप्लाई करो, हो गया। देन यहाँ पर x टू दी पावर c प्लस ए, तो यहाँ पर लिखो c प्लस ए और उसको मल्टीप्लाई करो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी से। ठीक है, देन हियर इट इज मेंशन x टू दी पावर a प्लस बी और उसको मल्टीप्लाई करो b माइनस सी इंटू सी माइनस ए से। सो दिस इज द वे यू कैन राइट इट डाउन। उसके बाद हम देखो जो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दैट मींस बेसिस से। तो हम क्या कर सकते हैं सर, इसको हम रैशनलाइज कर माने एलसीएम ले लेते। तो एलसीएम लेने से c माइनस ए है, a माइनस बी है, b माइनस सी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, क्योंकि ये तीनों हम लोग एलसीएम कर रहे हैं। एलसीएम करने से माने दिस प्लस दिस ऐसा आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी चला गया, दैट मीन्स b माइनस सी, दैट मीन्स b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। सिमिलरली यहाँ पर आएगा सर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, ऐसा आएगा। एंड देन हियर इट कम डाउन टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो दिस विल कम। So ultimately what will happen over here, so here we can write down a minus b into b minus c into c minus a. So it comes down to b square minus c square plus here it is c square minus a square plus here it is a square minus b square. So this thing it's coming. तो यहाँ पर c square minus c square को काट दो, a square minus a square को काट दो, b square minus b square को काट दो, तो कितना आता है सर? आता है यहाँ पर 0, यहाँ पर x टू दी पावर 0 ये, और यहाँ पर इसका रूट लेते हैं, दैट इज 1 बाई b माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी।
तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब तो 1 है, तो 1 टू दी पावर कुछ भी ले लीजिए, अब इसका रूट क्या कुछ भी ले लीजिए सर, उसका वैल्यू 1 ही आएगा। सो अल्टीमेटली इट कम डाउन टू 1। तो ये 3-4 स्टेप में यू कैन हैंडल एंड मैनेज दिस प्रॉब्लम। इसमें बड़ी कोई खास बात नहीं है, जस्ट नॉर्मल सिंप्लीफिकेशंस आई हैव शोन। सो दिस इज द वे यू कैन जस्ट सिंपली सिंप्लीफाई दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बार देख लो दिस जो प्रॉब्लम टू सॉल्व प्रॉब्लम, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताया। सो व्हाट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सर नंबर 1 दे गया एक प्रॉब्लम दैट इज 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 क्यूब। नंबर 2 एक प्रॉब्लम दिया गया, यहाँ पर दिखा गया 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो ये दोनों को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट विल टेक दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे? हमको पता है सर बेस को सेम करना है, तो यहाँ पर बेस है 4 टू द पावर x, तो इसको हम लिख सकते हैं सर 2 स्क्वायर टू द पावर x, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 के साथ x को मल्टीप्लाई, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस, सो इट कम डाउन टू 2 टू द पावर 2x। So that means 4 to the power x we can represent in this particular form. So here we can see 8 cube is there, that means here it is equal to 8 cube. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सर? यहाँ पर 8 का जाएगा में we can write down 2 cube whole to the power 3. That means 3 into 3 multiply होगा. So 3 into 3 if you multiply it comes down to 2 to the power 9. Now you see here your base is 2 and here your base is 2, that means both the base is same. ये दोनों जो बेस है वो सेम हो गया, दैट मींस उसका पावर जो है रेस्पेक्टिव पावर भी सेम ही होगा। अगर बेस सेम हो गया तो उसका मतलब पावर सेम होगा, दैट मींस 2x is equal to 9. So 2x is equal to 9 means x is equal to 9/2, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी तो समझ में आया? हाँ बोलो, एक सॉल्व हो। अरे तो समझ में आया? यस सर। ये किया था स्कूल में, किया था क्या? नहीं सर। नहीं किया? नहीं सर, ये क्लास में हुआ है। अच्छा, अभी देखो 2 टू दी पावर x प्लस 2 और इसका तुमको सॉल्व करने के लिए बोला है x को सॉल्व कर। कैसे करोगे सर? फर्स्ट में ये जो है इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? वी हैव टू ब्रेक इट। हाउ वी कैन ब्रेक इट? लेट्स चेक। सर इसको हम ब्रेक करेंगे। अच्छा, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? यस सर। सो दिस कमिंग डाउन टू से 2 टू दी पावर x और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 टू दी सपोज a टू दी पावर m प्लस n होगा तो उसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो यहाँ पर भी 2 टू दी पावर दिस है, तो ये फॉर्मूला को हमने यूज किया, ऐसे लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर है 2 टू दी पावर x माइनस 1, तो ये डिवाइड होगा, दैट मींस वी राइट 2 टू दी पावर x बाय 2 टू दी पावर 1 मींस 2। सो आई कैन राइट डाउन दिस थिंग्स, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं ना, उसके बाद यहाँ पर जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस 2 टू दी पावर x और ये हो जाएगा इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, सो हो जाएगा पावर में 2 प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा इसका पावर 1 है। सो अल्टीमेटली नीच में आ गया 2 और यहाँ पर हो गया 2 टू दी पावर x दैट इज इक्वल टू 9, ऐसे आ गया। सो इसको हम क्या करते हैं सर? यहाँ पर होगा 2q, दैट मींस 2q का मतलब है 8, तो 8 इंटू 2 टू दी पावर x और यहाँ पर होगा 2 टू दी पावर x और यहाँ पर होगा सर 9 इंटू 2, दैट मींस ये 2 जाके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें से अभी क्या कर रहे हैं ना सर, 2 टू दी पावर x को कॉमन ले लो, दैट मींस इट कम डाउन टू 8 प्लस 1। हम लोग 2 टू दी पावर x को कॉमन ले लेते, सो इट कम डाउन टू 8 प्लस 1, हियर इट विल बी 9 इंटू 2। अभी इस सिचुएशन में इसको हम लिखते 8 प्लस 1 में 9,
here it will be 9 into 2, तो ये 9 9 कट, so 9 9 कटने से ये आ जाएगा 2 to the power x is equal to 2 to the power 1. That means the value of x which you will get, that is x is equal to 1. So you'll get to see the value of x which you will get, that is x is equal to 1. इसका value आपको मिल जाए. So that is the value of x which you get from here. This is the value of x. Clear? That's the value of x which you get from. Now we move to the number 3 problem. Number 3 problems क्या है? ये समझ में आ गया? देख लो. तो ठीक है. Yes, sir. अभी नंबर 3 प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर लिखा है 3 to the power 2x plus 9 is equal to 10 into 3 to the power x. इसको सॉल्व करना है. सो पहले दो प्रॉब्लम हो गया, इसको हमने अभी मुझे दीजिए फर्स्ट दुटो प्रॉब्लम. सो वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम नंबर 3. इसको सॉल्व करना है. सो व्हाट टू डू सर, थोड़ा दिमाग खटाइए. दिमाग मतलब सर यहाँ पर 3 to the power 2x है, हम इस ढंग से लिख सकते हैं 3 to the power x का होल स्क्वायर. दैट मींस यहाँ पर जो 3 to the power 2x है उसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं. दिस इज द वे वी कैन राइट. यहाँ पर 9 था, सो सर 9 का जगह में हम 9 रख दिया और यहाँ पर 10 into 3 to the power x ऐसे लिख. सो उसके बाद क्या कर रहे हैं सर, इसको इधर लेके आइए. दैट मींस 3 to the power x का होल स्क्वायर माइनस 10 into 3 to the power x किया और प्लस 9 is equal to 0 ऐसे कर. सो इसके बाद हम पकड़ लेते हैं लेट 3 to the power x is equal to a से, ऐसे पकड़ लेते हैं. तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ये आ जाएगा. अब ये तुम लोगों को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सीखा था, पता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन? आदित्य, अरे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पता है? यस सर. तो ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर, माने ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसको प्रोडक्ट जो बनेगा उसको एडिशन फॉर्म में ले आओ. जैसे एक देखो 9 माइनस 9a और दूसरा होगा माइनस a. इसका मतलब है माइनस 9a के साथ अगर माइनस a को मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा 9a स्क्वायर, और अगर एडिशन करोगे तो इट कम डाउन टू माइनस a माइनस a. दैट मींस कम डाउन टू माइनस 10a. तो ये 10 ही है, तो हम इस पर लिख सकते हैं माइनस 9a प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो इसमें से हम a कॉमन ले लेंगे, इट कम डाउन टू a माइनस 9, और इसमें से अगर 1 कॉमन लेंगे इट कम डाउन टू a माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो इट विल बी a माइनस 1 एंड दिस विल बी a माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो দুটো ভ্যালু কি কি আসছে, one is a is equal to 1, another one is a is equal to 9. अभी a is equal to 1 मतलब सर ये हमने पकड़ा है 3 to the power x, तो इसको यहाँ पर बैठा दो, यहाँ जाएगा. सो ये काम आ जाता है 3 to the power x is equal to 1. तो 1 का वैल्यू क्या आएगा सर, 1 का वैल्यू आएगा 3 to the power 0 होने से सर 1 हो सकता है क्योंकि बेस सेम हो जाता है. तो ये 1 को हम 3 to the power 0 करके लिख सकते हैं. इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 0. एक वैल्यू आ गया. अभी दूसरों में बैठाते हैं सर, यहाँ पर a के जगह में अगर हम 3 to the power x बैठाएंगे सो इट कम डाउन टू 3 स्क्वायर, क्योंकि 9 है, 9 मतलब 3 स्क्वायर. सो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, दैट मींस x इज इक्वल टू 2. तो दोनों सॉल्यूशन होगा सर, दोनों सॉल्यूशन, एक होगा x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2, ये दोनों सॉल्यूशन होगा. सो x का दोनों वैल्यू हम लोगों को निकाल के चले आएंगे. So these are the two values of x which we will get from here. ठीक है ना? देख लिया? देख लो पूरा के पूरा प्रॉब्लम देख लो. हाँ, कोई क्वेश्चन है तो बताओ. इसी हिसाब से हम लोग
सॉल्व करते हैं. दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस थ्रू इंडिसेस. 4 नंबर प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम करो फिर जी से. सर यहाँ पर अगर दे गया 4 टू दी पावर x माइनस 1, इसको बोलते हैं सॉल्व x. 4 to the power x minus 1, and here it is given 3 into 2 to the power x minus 8. इसको सॉल्व करने के लिए बोलता है. सर फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर जो है तो उसको हम किस ढंग से लिखते देखते हैं. सर यहाँ पर हम लिखते हैं 2 स्क्वायर होल टू दी पावर x माइनस 1, एंड यहाँ पर लिखेंगे 3 into 2 to the power x minus 8. So these equations we can write in the form of 2 to the power. यहाँ पर लिखेंगे सर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 2x माइनस 2. ठीक है. और यहाँ पर लिख देते 3 into 2 to the power x minus 8. अभी क्या करते हैं सर, अभी ये इसको हम 2 to the power 2x लिखते हैं, नीच में 2 स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि ये जो -2 है इसको नीच में लेके आते हैं. एक्चुअली क्या होता है, इसको अगर ब्रेक देखा जाए सो 2 to the power 2x minus 2 को हम कैसे ब्रेक करते हैं सर, इससे ब्रेक करते हैं 2 to the power 2x into 2 to the power minus 2. और ये 2 to the power minus 2 जो है इसको हम नीचे लेके आते हैं, दैट इज 2 to the power 2x by 2 square. तो इसी हिसाब से हम करते हैं. Then it comes down to 3 into 2 to the power x minus 8. Now we will cross multiply this with this. So if I cross multiply, ऊपर का पोर्शन हो जाएगा, this topmost portion will be 2 to the power x का इसको होल स्क्वायर बना, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. We can write these things in this form, and here it is 4, so 4 into 12, so it comes down to 12 into 2 to the power x, and here 4 into a, that is 32. अभी क्या करेंगे सर, ये पूरा चीज जो है इसको हम इस तरह लेके आएंगे. So it comes down to 2 to the power x का होल स्क्वायर हो गया minus 12 into 2 to the power x plus 32 is equal to 0. अभी सर यहाँ पर let 2 to the power x is equal to a, क्योंकि फैक्टराइज करना है तो हम इसी हिसाब से इसको ब्रेक कर लेंगे. So it comes down to a square minus 12 into a plus 32, ये आ जाएगा. सर इसको आप आसानी से फैक्टराइज कर सकते हो, दैट इज 8a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4a प्लस 30. मिडिल टर्म में ऐसे आसानी से फैक्टराइज हो जाए. सो यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल टू a माइनस 8, और यहाँ पर आ जाएगा 4 कॉमन ले लो तो a माइनस 8. सो इट बिकम्स a माइनस 4 इंटू a माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये आ जाएगा. So that means इसका दोनों वैल्यू होगा सर, एक a का वैल्यू होगा 4 और दूसरा होगा 8. अभी a का वैल्यू हम लोग लिखे थे, that is 2 to the power x is equal to a. इसका मतलब once a is equal to 4, that means 2 to the power x is equal to 4. तो इसका मतलब है सर 2 स्क्वायर. तो बेस को हमको सेम करना है, तो बेस इफ इट इज सेम, इसका वैल्यू आ जाएगा 2. एक वैल्यू आ गया. सेकेंड में 8 है, दैट मीन्स 2 to the power x is equal to 8. इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब. तो बेस इज सेम, दैट इज 2. 2 is the base, so x is equal to 3. That means पावर इक्वल हो जाएगा, माने पावर का वैल्यू 3 होगा. तो x का दो वैल्यू हो जाएगा सर, एक होगा 2, 3. So that is the final answer of this particular problem. तो इस प्रॉब्लम, इस तरीके का प्रॉब्लम को हम इसी हिसाब से नॉर्मली क्रैक करते हैं. तो एक बार थोड़ा देख लो, हम मिनिमाइज कर, अगर कोई क्वेरीज है तो पूछो. ये है सॉल्व करने का तरीका, हाउ वी कैन सॉल्व द इंडिसेस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. ठीक है. तो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द इंडिसेस. और भी एक प्रॉब्लम दिखाते हैं इंडिसेस के ऊपर. चलो देख लो अनदर प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 5. सर एक प्रॉब्लम दिया गया, सॉल्व एक्स, ए भी सॉल्व करने के लिए बताया. वहां पर सर वैल्यू बताया 9 to the power x plus 2, and that is equal to, they have given 3 to the power x minus 3. इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए बताया. So इसका हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज, वी कैन राइट 3 to the power x into 3 to the power minus 3.
तो इसको हम लिख सकते हैं सर 3 टू दी पावर x बाई 3 क्यूब, ऐसे करके लिख सकते हैं। चलो कम डाउन टू दिस पोर्शन, इस पोर्शन में क्या दिया है सर, यहाँ पर दिया है 9 टू दी पावर x, माने 9 टू दी पावर x इंटू 9 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। सो हियर यू कैन राइट डाउन 3 टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 3 क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। सर यहाँ पर जो 9 दिया है इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 स्क्वायर माने 3 टू दी पावर 2x, क्योंकि ये 9 टू दी पावर x जो है सर, इसको अगर ऐसे लिखेंगे 3 स्क्वायर होल टू दी पावर x, so that we can write down in the form of 3 to the power 2x. This is the way we can break it. सर यहाँ पर जो है 9 स्क्वायर, सो 9 स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, इसके ऊपर ये 2 है माने 81 होगा, माने दिस विल बी अ स्क्वायर ऑफ दिस, और उसके साथ सर ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 क्यूब से, क्योंकि ये 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, सो अल्टीमेटली इट कम डाउन टू 3 टू दी पावर x। ठीक है, अभी क्या करते हैं सर, यहाँ पर 3 टू दी पावर 2x जो है, सो उसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 3 टू दी पावर x लिख के उसके ऊपर x स्क्वायर चापा, और ये जो पोर्शन है इसको नीचे ला के देते हैं, दैट मीन्स 3 टू दी पावर x, और यहाँ का जो पोर्शन है उसको नीचे नामा देते हैं, तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा 3 क्यूब, और यहाँ पर इसके साथ इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3 टू दी पावर 4, तो टोटल जो वैल्यू बनेगा वो हो जाएगा 3 टू दी पावर 4 है, दैट मीन्स 3 टू दी पावर 3 इंटू 4, ऐसे हो जाएगा। सो अल्टीमेटली इट कम डाउन टू 1 बाई 3 टू दी पावर 12, ऐसा आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर 3 टू दी पावर x है, यहाँ पर भी 3 टू दी पावर x है, तो हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर x का 2 माइनस 1, क्योंकि इसको हम ऊपर उठा देंगे तो ये हो जाता है 3 टू दी पावर x का होल स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर x होल टू दी पावर माइनस 1। अगर 3 टू दी पावर x बेस है, दोनों जगह में 3 टू दी पावर x इज द बेस, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर x, और ऊपर का पावर ऐड हो जाएगा माने 2 प्लस ऑफ माइनस 1, तो इसमें से आ जाएगा 3 टू दी पावर x होल टू दी पावर 1, तो दिस मीन्स 3 टू दी पावर x। तो इसी हिसाब से दिस थिंग्स वी कैन क्रिएट, दैट मीन्स इसका वैल्यू मिल गया, तो इसके बाद हम इसको ऊपर उठा देते हैं, दैट मींस इसको ऊपर उठा देने से क्या होगा, 3 टू दी पावर माइनस 12 हो जाएगा। सो वंस इट विल बिकम माइनस 12, सो वी कैन से 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करो, a टू दी पावर 1 है, 1 into x मींस 1 x, सो इट विल बी 3 टू दी पावर माइनस 12। अभी देखो इसका बेस सेम हो गया, so if the base is same, the value of x you can write, that is the value of x is equal to minus 12. So this is the way you can solve this particular equation. So इस equation को तुम आराम से solve कर सकते हो, ठीक है? This is the way you can handle such kind of equation. Last एक और एक problem देखो इसी का, सर यहाँ पर लिखा गया, चलो और एक सॉल्व करते, x प्लस 2 ये दिया हुआ, प्लस यहाँ पर लिखा है 2 टू दी पावर 2x प्लस 1, और यहाँ पर लिखा गया दैट इज इक्वल टू 36। तो इसको हमको सॉल्व करना है, मैंने x को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें सर, फर्स्ट ये ब्रेकअप कीजिए, इसको लिखिए 4 टू दी पावर x इंटू 4 स्क्वायर, और यहाँ पर लिखिए 2 टू दी पावर 2x इंटू 2 टू दी पावर 1, यहाँ पर लिखिए 36, जस्ट फॉर्मूला को अप्लाई करें। सर यहाँ पर ये जो है 4 टू दी पावर x, इसको आप लिखिए 2 स्क्वायर होल टू दी पावर x, और इसको लिखिए 16, और यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर क्या है 4 टू दी पावर x है। अच्छा यहाँ पर एक काम कीजिए, उतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 4 टू दी पावर x को लिखिए 16 इंटू 4 टू दी पावर x, और यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, दैट मींस 2 स्क्वायर होल टू दी पावर x इंटू 2 is equal to 36, ऐसा लिख सकते हैं। Then you can write down this way, that 16 into 4 to the power x plus 4 to the power x into 2 is equal to 36, ऐसा लिख सकते हैं।
So this way you can write. Then इसको ऐड कर दो सर, क्योंकि 4 to the power x को कॉमन ले लीजिए. So if you take 4 to the power x common, then it comes down to 16 plus 2 is equal to 36. So 16 plus 2 means 18. So it will be 18 into 4 to the power x is equal to 36. तो इसको काट, तो ये हो जाएगा 2. So ultimately इसको फिर 2 to the power माने 2 square whole to the power x में ट्रांसफर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2. सो इसको हम क्या करेंगे, हमको बेस को सेम रख के करना है. तो इट कम डाउन टू 2 to the power 2x बना लो, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 1. तो नाउ यू कैन सी आवर बेस इज सेम. दिस इज 2, दिस इज 2. सो वी कैन इजीली से द बेस इज सेम मींस ये पावर जो है ये दोनों पावर भी सेम हो जाएगा. दैट मींस 2x is equal to 1. So x is equal to half. So we can say that the value of x come down, that is equal to half. ऐसे करें. So this is the way you can understand this particular problem. इसी हिसाब से इस प्रॉब्लम को समझना है और सॉल्व भी करना है. So this is one of the way by which the different types of problems we can handle over here. इसी हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर. ठीक है ना, आज तो देख लिया. यस सर. अभी थोड़ा फिटजी टाइप का प्रॉब्लम्स, एक तो थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते हैं इंडिसेस का. कैसे सर, एक प्रॉब्लम दिया गया क्वेश्चन नंबर में. Sir, it is given that if x is equal to 2 to the power 1/3 plus 2 to the power 2/3 plus 2, then show that that is x cube minus 6x square plus 6x minus 2 is equal to 0. ये होगा. That means this is given x is equal to 2 to the power 1/3 plus 2 to the power 2/3 plus 2. Then you have to prove these things. ऐसे लेके आना है. फर्स्ट थिंग इज सर, ये एक्सेस क्यू के बारे में जो कहा है इसको हम थोड़ा एक बार देखेंगे कि इसका मतलब क्या है. दिस इज द वे वी हैव टू थिंक, कैसे इसको लेके आ सकते हैं, और नजदीक तो कम से कम ले आ ही सकते हैं. कैसे सर, इस सिचुएशन में फर्स्ट जो करना है दैट इज ये जो 2 है ना, इसको छोड़िए, इसको हम रख देते हैं इंटैक्ट एज इट इज रख देते. सर इस पोर्शन को सर इधर लेके आइए. So then we will see that it comes down to x minus 2, and here we can see इसको हम ऐसे लिखते हैं, that is 2 to the power 1/3 plus 2 to the power 2/3. ऐसे आ गया. Then what to do? सर ये जो है इस टर्म को अंदर हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे. कैसे सर, जैसे ये जो टर्म दिया है इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड पकड़े, सो इट कम डाउन टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. इसको 0 प्रूफ करना है. तो पहले देखते हैं इसके अंदर एक a माइनस बी होल क्यूब का एक फॉर्मूला है, a माइनस बी होल क्यूब. तो ये फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं सर, इसको लिखते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी, ऐसे लिखते हैं. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो हमारा 6x आ गया. उसके बाद हम लिख सकते हैं सर 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं. और उसके बाद हम लिख सकते हैं माइनस 2 ऐसे लिखा है. लेकिन सर ये तो मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ से ये तो मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर में -2 है, आपने -8 लिख दिया. तो -8 में -2 में डिफरेंस आएगा +6 का. तो एक काम कीजिए सर, इसमें +6 ऐड कर दीजिए
और एक टर्म नहीं मिल रहा है, ये टर्म मिल रहा है, ये टर्म मिल रहा है, लेकिन इस 2 के साथ this 2 is not matching with 2q, क्योंकि 6 का डिफरेंस हो रहा है, इसलिए अपने +6 ऐड किया यहाँ पर। और यहाँ पर सर +12x हो रहा है, अपने यहाँ पर +6x चाहिए, मैंने अपने 6x ज्यादा डाल दिया। तो आपको इतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको -6x करना है। सो यू हैव गिवन इट इज -6, तब आपको ये चीज दिखाई दे रहा है, मैंने ऑलमोस्ट इट इज कमिंग है, ठीक है लगता है। जे यहाँ पर 2q मीन्स 8 होगा, तो यहाँ पर -2 है, तो x³ -6 x 3 इंटू एक्स स्क्वायर -6, यहाँ से ये मिल रहा है। यहाँ पर +6 था, हमारा 12 6 हो गया, तो 12 6 से -6 कर दो तो आपको +6 आ जाएगा। सर यहाँ पर -2 है, हमने -2 से जगह में -8 डाल दिया, तो इसलिए हमको +6 करना जरूरी है, हमने +6 कर दिया। सो ये करने से इस वैल्यू जो आ रहा है दिस कमिंग डाउन टू x -2 का होल क्यूब हो गया, और यहाँ पर +6 -6x ऐसा कुछ आ गया, ऐसा आ गया। लेकिन प्रॉब्लम की बात है क्या, देखो हम बता रहे हैं सर, ये हम यूज करेंगे कैसे सर, इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करते थे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। So if you cube on both side, it comes down to x -2 whole cube, और यहाँ पर जो हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 to the power 1/3 का होल क्यूब होगा ऐसा। उसके बाद 2 to the power 2/3 जो है इसका बेसिकली होल क्यूब होगा, माने a क्यूब प्लस b क्यूब। और उसके बाद 3ab माने 3 into ab, a मतलब है ये है a, ये है b, दैट मींस 2 to the power 1/3 into 2 to the power 2/3, ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू। उसके साथ तुम ऐड करो 2 to the power 1/3 प्लस 2 to the power 2/3, ऐसे ऐड कर दिया। चलो एक बार देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा सर, इसका वैल्यू ये काट दो तो ये हो गया 2, इसको काट दीजिए सर, इसका वैल्यू हो गया 4, दैट मींस ये 6 हो गया। सर इसको क्या होगा सर, ये 3 into 2 to the power ऐसा है, दैट मींस इसको हम देखते हैं 2 to the power 1/3 प्लस 2/3, इसको ऐड करो, क्योंकि ये बेस सेम है आपका, तो ये पावर भी ऐड हो जाएगा। बेस सेम मींस पावर ऐड हो जाता है। इफ इट इज इन द मल्टीप्लाइड फॉर्म, इफ द बेस इज सेम, द पावर विल बी एडेड। तो पावर ऐड होने से क्या होगा सर, इसमें नीचे 3 आएगा, एलसीएम ले लो तो ऊपर में भी 3 आएगा, 3 3 काट दो तो 2 आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 2, और इसका वैल्यू क्या है सर, इसका वैल्यू है x -2। सो इस वैल्यू को आप यहाँ पर आके पुट कर दो, सो इट कम डाउन टू x -2। तो इसको करने से क्या मिलता है सर, इसको 6 होगा, ये 6x होगा, और ये -12 होगा, दैट मीन्स इट कम डाउन टू 6x -6, ये आ जाता है। दैट मीन्स ये x -2 का होल क्यूब का जो वैल्यू है, इस वैल्यू है 6x -2। तो हम क्या करेंगे सर, ये वैल्यू हम इस वैल्यू को हम इस जगह में पुट कर देंगे। So if you put this value over here, it comes down to 6x -6, और यहाँ पर था 6 + 6 -6x, तो यहाँ से 6 काट गया, और -6 + 6x काट गया, so ultimately it comes down to 0. So it is proved. तो इसी ढंग से हम इस तरीके का माने वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम लाइक दिस। बहुत सारी तरीका है, बट दिस इज वन ऑफ द वे बाय व्हिच वी कैन सॉल्व। दैट मींस just 2 you have taken into this side, after that you have cubing this 2's on both sides, so x -2 whole cube, and then if you cube this portion, then it comes down to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, and after doing these things you get to know these equations. Once you get to know these equations, then this is the form, and after that you just simply put the value of x -2 whole cube over here, this particular value whatever you have got from here, तो ये वैल्यू को तुम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर। सो वंस यू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, then you will see the final equation becomes 6x -6 plus 6 -6s, so cut do, ultimately it comes down to 0. So this is one of the way by which you can solve such type of problem. Do you
Suppose it is given if 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 12 to the power z, then show that then show that 1 by z minus 1 by x is equal to 2 by x. ये प्रूफ करना। सर ऐसे कैसे होगा? आराम से हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आराम से हो जाएगा। कैसे? इस तरीके का प्रॉब्लम जब दिया गया ना, सो व्हाट एग्जैक्टली हैव टू डू, a इज इक्वल टू हमको एक के तरीके से सोचना है। दैट मींस लेट कंसीडर इसको ऐसे हिसाब से देखोगे दैट 2 टू द पावर x is equal to 3 to the power y is equal to 12 to the power z, and that is equal to k. So this is the way first we'll pick up. उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद ये जो 2 है ना, इसको अलग कीजिए। 2 to the power x is equal to k. That means इसके ऊपर अगर 2 to the power x के ऊपर सर 1 by x लगाएंगे तो ये आ जाएगा k to the power 1 by x। दोनों के ऊपर 1 by x करके आप पावर ले लीजिए। Once you will take this power, what will happen sir? x के साथ x कट जाएगा। That means 2 का वैल्यू आ जाएगा k to the power 1 by x. So this you just keep it separate. This is your equation number 1. अभी 3 को पकड़िए, इसको पकड़ा सर। यहाँ पर लिखिए 3 to the power y is equal to k. आपने लिखा था 3 to the power y is equal to k. Already you have written. So यहाँ पर भी 3 to the power y के ऊपर 1 by y करके you can write down k to the power 1 by y. So ये y काट दो. So ultimately it comes down to 3 is equal to k to the power 1 by y. This will come. So this is your equation number 2. इसको रख दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपली ऐसे ही रख दो। देन व्हाट टू डू सर? अभी 12 जेड बाकी है, उसको भी पकड़ा। सो 12 टू द पावर जेड इज इक्वल टू के से आपने लिखा था इस रिलेशन से। सो 12 टू द पावर जेड के ऊपर 1 बाई जेड लिख दीजिए। 12 टू द पावर जेड है, उसके ऊपर 1 बाई जेड, और यहाँ पर आएगा के टू द पावर 1 बाई जेड। सो जेड एंड जेड विल बी मल्टीप्लाई. So it comes down to how much? It comes down to 12 is equal to k to the power 1 by z. ऐसा है, and that is your equation number 3. ये हो गया। अभी क्या करना है सर? अभी इसी सिचुएशन में आप 1 by z minus 1 by x ऐसा कुछ दिया हुआ है। So 1 by z into 1 by x उसी फॉर्म में हमको लेके जाना है। कैसे लेके जाए sir? In this case what exactly we are going to do sir? ये 12 है ना, इसको आप इसे लिखिए 2 square into 3, that is equal to k to the power 1 by z. ऐसे आप लिख सकते हैं। 2 square into 3 is equal to k to the power 1 by z. 12 को आपने ऐसे ब्रेक किया। इसके बाद सर यहाँ पर जो 2 है, इसको आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा k to the power 1 by x का होल स्क्वायर। सो दैट मींस इट कम डाउन टू k to the power 2 by x. तो आप क्या करोगे सर? सर ये 2 स्क्वायर जो है इसका वैल्यू आ गया k to the power 2 by x। इस वैल्यू को सर आप यहाँ पर आके बैठा दो। सिंपल, वहां पर आके ये जो वैल्यू आपको मिला है, so this value you just simply transfer over here. यहाँ पर 2 स्क्वायर है, क्योंकि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल गया दिस वन। तो 2 to the power k to the power 2 by x का वैल्यू यहाँ पर बैठा दो, और यहाँ पर 3 का वैल्यू आपको आ गया था, दैट इज कम डाउन टू k to the power 1 by x. so वो वैल्यू को आपने शिफ्ट करके यहाँ पर बैठा दो। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया? So final equation 2 स्क्वायर के जगह में आप लिखो k to the power 2 by x, और 3 के जगह में लिखो k to the power 1 by y, और यहाँ पर जैसे है k to the power 1 by z ऐसे लिख दिया। इसको बाद ये k के ऊपर पूरा का पावर है, so ultimately you can write down 2 by x plus 1 by y is equal to k to the power 1 by z। ऐसे लिख।
लिख दिया। लिखने के बाद इसका वैल्यू बेस आपका सेम है, दैट मींस 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, ऐसा कुछ आ रहा है। दिस इज समथिंग व्हिच इज कमिंग ओवर हियर। सो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, दैट इज यू कैन राइट डाउन 2/x इज इक्वल टू 1/z माइनस 1/y। दैट मींस यहाँ पर जो 1/y है इसको सर आप इस साइड में लेके चले। सो इट कम डाउन टू दिस, ये आपका प्रूफ हो गया। सो दिस इज योर प्रूफ। तो आपका प्रूफ जो था 1/z इज इक्वल टू दिस, सो वो आपका प्रूफ हो गया। देखो ये नया तरीका का प्रॉब्लम है फ्रॉम रेजोनेंस। ओके, इस तरीके का प्रॉब्लम करा है क्लास में ऐसे कुछ? हाँ ये तो बोलो। आर यू गेटिंग माय वॉइस? सर मैं आज स्कूल नहीं गया था, मुझे नहीं पता। आज ये स्कूल नहीं गया? अरे ये नहीं सब कुछ सर, तो ये ऐसा सब हुआ सॉल्व। नहीं था। एक बार देख लो ये प्रॉब्लम में, अगर डाउट है तो बता। अभी देखो इस तरीके का एक प्रॉब्लम दी गया। सपोज इट इज गिवन इफ a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z, and it is given a b c is equal to 1. Show that they have mentioned, show that 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to 0. That you have to show. कैसे करोगे सर? सेम प्रॉब्लम सेम ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। दैट मींस लेट्स कंसीडर, सो हम लोग लिखेंगे लेट्स कंसीडर a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z is equal to k से। देन वी कैन राइट, इसको लिखेंगे a to the power x is equal to k, सो वी कैन राइट डाउन, इसको हम ऐसे लिखेंगे a to the power x के ऊपर हम 1/x लगाएंगे और इसको लिखेंगे k to the power 1/x। तो x कट गया, सो हम पर रहेगा a is equal to k to the power 1/x। सो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। अभी ले लो नेक्स्ट वाला का, दैट मींस b to the power y is equal to k से, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आपने b to the power y is k, तो इसके ऊपर पावर में ऐसे करके डालो, क्योंकि y को तुमको हटाना है, यहाँ पर बैठाना है, ये इस जगह में। सो 1/y कर दो एंड पावर ले लो k to the power 1/y, तो y कट दो। So once you cut down these things, it comes down to b is equal to k to the power 1/y, ये आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। नंबर 2 इक्वेशन आ गया। उसके बाद c to the power z के साथ k को इक्वेट करो, दैट मींस यू राइट डाउन c to the power z is equal to k से, दैट मींस यू कैन राइट डाउन c to the power z के ऊपर 1/z डाल। सो अल्टीमेटली इट कम डाउन टू k to the power 1/z। सो इसको अगर कट दो, so it comes down to c is equal to k to the power 1/z। so इसको इक्वेशन 3 में डालो। अभी 1 into 2 into 3 करो, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो।
सो इधर में आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी और इधर में आ जाएगा k टू दी पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, क्योंकि ये इसका बेस सेम है. सो इफ द बेस इज सेम, k भी बेस है, यहाँ पर k बेस है, यहाँ पर तो पावर ऐड हो जाएगा. दैट मीन्स if you multiply k to the power 1 by x into k to the power 1 by I into k to the power 1 by z, that means base same है, that means power add हो जाएगा. So if the power gets added like this, so this value you can put over here. So once you have put this value over here, you can check from here that ABC का जो value दिया है, that is 1. So you can say this value is 1. And here it is written k to the power 1 by x plus 1 by y plus 1 by z over here. So you can easily write down 1 means it comes down to k to the power 0. Here we can write down k to the power 0 means 1, where we can write that k is not equal to 0. That means 1 means anything to the power 0, always value is 1, provided if that is not equal to 0. So this we have written, that means अगर base same है, that means here भी k है तो power same होगा. So that means we can say 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 0 आएगा. So that is the answer of this particular questions. तो इसी हिसाब से इसका आंसर आ जाता है. ठीक है. So this is the way you can find out the answer of this particular questions. Take a look. This is the way you can find the answer of this particular questions. So this is the way you have to solve this particular type of problem. Okay. Now I'll show you another interesting problems to you. And that's from Fiji. Now it is given in the question number 1 that if a to the power a is equal to b to the power b, that is given. So now they have asked show that a to the power a is equal to b to the power b is equal to a by b whole to the power a by b whole to the power a by b, and that is equal to a to the power a by b minus 1. How to solve this problem? इसको कैसे solve करना है? That is a to the power a is equal to b to the power b. This is given. Now show that a to the power a is equal to b to the power b, and that is equal to a by b whole to the power a by b, and that is equal to this. इसको कैसे solve करना है? So first and foremost thing what we have to understand over here, this is given. ये दिया हुआ है. तो हमको पहले क्या करना है? सर एक काम करते हैं, इसको a by b फॉर्म में किसी भी हालत में हमको लेके जाना पड़ेगा. एनी कंडीशंस में इसको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि a to the power a है तो पहले प्रूफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा. So what we can do over here, that is, सर एक काम करते हैं कि a by b whole to the power a by b इसका वैल्यू क्या है देख लेते हैं. सर एक काम करते हैं, जो a जो है और b नहीं तो b जो है, बेसिकली यहाँ पर हमने a by b is equal to a के टर्म में लेके मैंने b को एलिमिनेट करेंगे. तो हम क्या लिख सकते हैं सर? a to the power a is equal to b to the power b, that is given. तो we can write down sir a to the power a whole to the power 1 by b is equal to b to the power b whole to the power 1 by b, ऐसे लिख सकते हैं. तो इसको ऐसे ऐसे काट दो, तो it comes down to a to the power a by b is equal to b. ये आ गया. तो ये b का जो वैल्यू है ना सर, ये b का वैल्यू को आप यहाँ पर
और यहाँ पर पुट कर दो, देखते हैं क्या आता है। सर यहाँ पर अगर पुट कर दिया तो इट कम डाउन टू a बाई बी का वैल्यू होगा a टू दी पावर a बाई बी, ऐसा आएगा। और ऊपर में क्या है सर, ऊपर में है a बाई बी, मैंने इसके पावर में जो है, सो इसके पावर में होगा a बाई बी, दैट मीन्स इट कम डाउन टू a बाई बी। तो b का वैल्यू भी तो वही होगा, सो अल्टीमेटली इसके वैल्यू में जाएगा में हम ऐसे रखा है पहले। तो इसको कैसे लिखते हैं सर? सर ये b जो है, सो दिस पर्टिकुलर b का जो वैल्यू है दैट इज a टू दी पावर a बाई बी, दैट मीन्स ये b का जाएगा में हम फिर लिख सकते हैं a टू दी पावर b a बाई बी, ऐसे लिख सकते हैं। दिस वी कैन राइट। अभी इसका वैल्यू क्या होगा सर? इसका वैल्यू होगा ये जो है ये ऊपर में चला जाएगा तो इट कम डाउन टू 1 बाई a बाई बी, ऐसा आ जाएगा। और इसका पावर जो होगा उसमें आ जाएगा a टू दी पावर 1 माइनस a बाई बी। देखो ऐसा ही होता है क्योंकि a है सब में ऐसे ही है। सो अल्टीमेटली इट कम डाउन टू b माइनस a, ऐसा आ गया, बाई b, ऐसा कुछ आ गया। और इसके ऊपर जो पावर आएगा वो आएगा a टू दी पावर b माइनस a बाई b। सो दिस पावर विल कम, ऐसा कुछ पावर आ जाता है। तो इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है सर, ये जो दिया गया है इसको इक्वल टू अगर आप k पकड़ लेते तो इतना दिक्कत नहीं आता, क्योंकि a इक्वल टू अगर k पकड़ लेते तो इसका वैल्यू अपना आसान से मिल जाता। सर a का वैल्यू होता k टू दी पावर, इसको 1 बाई a कर दो, और b का वैल्यू जो होगा दैट मीन्स b का वैल्यू हो जाएगा k टू दी पावर 1 बाई b, ऐसा आ जाएगा। तो इसमें से आपको प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकता है, बिकॉज इफ यू पुट दिस वैल्यू तो a टू दी पावर a का वैल्यू आपका जो आएगा सो उसका वैल्यू होगा k, क्योंकि a टू दी पावर a मतलब सर आपको k टू दी पावर 1 बाई a है, उसके ऊपर a चापा दिया तो a काट दो, आपको k आ गया। b टू दी पावर b का मतलब आप k टू दी पावर 1 बाई b है, उसके ऊपर b चापा दो, उससे उसका वैल्यू k आ जाएगा। तो ये हर चीज जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, वो सभी का वैल्यू सर बेसिकली आपको k आना चाहिए। तो k कैसे आएंगे? देखिए सर हम कैसे करते हैं, ये हमको दे गया है, सो ये ऑलरेडी हमने निकाल चुका है। अभी हम a बाई बी होल टू दी पावर a बाई बी का वैल्यू क्या है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सर a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है k टू दी पावर 1 बाई a। b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है k टू दी पावर 1 बाई b, ये है। और उसके ऊपर पावर है दैट इज k टू दी पावर 1 बाई a बाई k टू दी पावर 1 बाई b। दिस इज द थिंग्स व्हिच इज गिवन टू यू। अभी इसको सॉल्यूशन में लेके आएंगे तो क्या होगा सर? ये हो जाएगा 1 बाई a माइनस 1 बाई b, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और उसके ऊपर जो पावर दिया हुआ है उसमें लिख रहा है दैट इज 1 बाई a माइनस 1 बाई b। सो दिस इज द वे यू कैन रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर थिंग, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। Now the question is a minus 1 by इसका पावर क्या होगा? That means this power, what exactly we can write down over here? सर ये जो k to the power b minus a by ab, इसका जो वैल्यू, और यहाँ पर k to the power b minus a by ab, इसका जो वैल्यू आ रहा है तो इसका वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए। अब रिप्लेस करने से ही तो आराम से आ जाएगा, जो उसका जो वैल्यू होगा सो आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर b माइनस a जो होगा दैट मीन्स k टू दी पावर 1 बाई b माइनस k टू दी पावर 1 बाई a, ये वैल्यू आपको आ जाता है क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली अल्टीमेटली दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ सकता है सर? इसका वैल्यू है k टू दी पावर b माइनस a बाई ए बी इंटू k टू दी पावर b माइनस a बाई ए, ऐसा कुछ है। तो सर यहाँ पर आप देखिए, अब जब कर रहे हैं सो यहाँ पर b का वैल्यू b माइनस a का वैल्यू है k टू दी पावर b माइनस a माइनस k टू दी पावर 1 बाई b, इस तरीका का वैल्यू आ रहा है।
तो यहाँ से तो आराम से आप लिख सकते हैं जे अगर a बाई बी, सपोज a बाई बी इज इक्वल टू दिस है, तो इसका वैल्यू को आप यहाँ से ट्रांसफर करने के बाद तो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, क्योंकि आप वैल्यू अगर उसमें पुट कर दो सो ऑटोमेटिकली यू कैन गेट दिस पॉइंट ओवर हियर, ये आपका पॉइंट पे आ जाए। सो दिस इज वन ऑफ द वे बाय व्हिच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट ये थोड़ा आप लोगों के लिए टफ होगा, इसलिए हमने इसको रब कर देते, थोड़ा टफ होगा फर्स्ट दिन के लिए, ये तुम लोगों के लिए समझना थोड़ा टफ होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये थोड़ा टफ होगा, ये अभी छोड़ो, क्योंकि this will be little bit tough for you people right at this moment. जो प्रॉब्लम हो सकता है इस तरीके का प्रॉब्लम देखो एक बार। सपोज इट इज गिवन x to the power a is equal to c to the power b and it is given x to the power c is equal to x 8 c to the power a, ये है c to the power a, तुमको पीटी प्रूफ करना है a square is equal to bc. So how you can prove these things? A square is equal to BC. ऐसा कुछ proof करना है. I don't know whether the problem is correct or wrong, but they have given, so that's why I have mentioned it over here. Printing mistake थोड़ा हो सकता है, हम देख लेंगे करने के टाइम। तो first thing is हम जो करेंगे वो है x का जो वैल्यू है उसको हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लिखेंगे x to the power a whole to the power 1 by a is equal to b2 c to the power b whole to the power 1 by a, ऐसे लिखेंगे। तो a काट दिया तो मतलब x का वैल्यू आ गया c to the power b by a, ये वैल्यू मेरे को मिल गया, दैट इज नंबर 1। अभी ए एक्स का जो वैल्यू मिला है दैट इज सी टू दी पावर बी बाई ए, ये वैल्यू को लेके यहाँ पर बैठा दो। सो बैठाने से क्या होगा, ये होगा सी टू दी पावर बी बाई ए इज होल टू दी पावर सी आ गया, और इसका आ गया सी टू दी पावर ए, ऐसा आ गया। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सी टू दी पावर बी सी बाई ए, और इसको लिख सकते हैं सी टू दी पावर ए। तो ये जो बेस है ये बेस सेम हो गया। सो इफ द बेस इज सेम, ये दोनों बेस सेम है तो इसका मतलब ये जो पावर है वो भी सेम होगा, दैट मींस BC by A इज इक्वल टू आपको A आ जाएगा। सो दैट मींस यू कैन से A स्क्वायर इज इक्वल टू BC। सो दिस विल बी प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। सो दैट मींस जस्ट यू आर इक्वेटिंग दिस पावर and you can solve such kind of problems from here. इसी हिसाब से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम देखो इस तरीके का, ये थोड़ा आसान प्रॉब्लम था। अनदर प्रॉब्लम यू कैन जस्ट चेक फ्रॉम बिट जी, दैट इज इफ एक्सेस क्यू इज इक्वल टू y टू द पावर 4, ये दिया गया है। नाउ प्रूफ दैट, आपको जो प्रूफ करना है, सो दिस प्रूफ, ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया, इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं। दिस इज द वे वी हैव प्रूव्ड इट। एक्सेस क्यू इज इक्वल टू y to the power 4. Now they have mentioned prove that x by y whole to the power 4 by 3 plus y by x whole to the power 3 by 4 and that is equal to x to the power 1/3 plus y to the power minus 1 by 4, ये प्रूफ करना है। So what we can do over here, इसमें से हम ये कर सकते हैं जो x by y का जो वैल्यू है उसको अलग करके देख लेते हैं कितने आता है। So first of all यहाँ पर अगर हम वैल्यू को ऐड करेंगे, माने x by y है, y by x है, इसी फॉर्म में है। So what we can do ना, यहाँ पर x to the power मतलब क्या है, यहाँ पर x to the power 4 by 3 है प्लस y to the power 4 by 3 है, और यहाँ पर है y to the power 3 by 4
और यहाँ पर है x टू दी पावर 3/4। तो पहले ये y टू दी पावर 4/3 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में कितना है, दैट मींस सर यहाँ पर x टू दी पावर हम लोग 4/3 माने 3 से डिवाइड करेंगे माने 1/3 से, तो यहाँ पर कर दिया। सो इट कम डाउन टू y टू दी पावर 4/1/3। तो ये कट गया। सो अल्टीमेटली इट कम डाउन टू x इज इक्वल टू y टू दी पावर 4/3, ये आ गया। तो y टू दी पावर 4/3 का वैल्यू है x, तो ये x वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। तो ये करने से ये आ गया x टू दी पावर 4/3/x, क्योंकि y टू दी पावर 4/3 को हमने रिप्लेस किया। उसके बाद यहाँ पर हमको x को रिप्लेस करना है क्योंकि y को चाहिए, तो हम लोग लिखा है y टू दी पावर 3/4 और x टू दी पावर 3/4 में ये लेके आएंगे, तो हमारा था x³ इज इक्वल टू y टू दी पावर 4। तो इसको कैसे लेके आएंगे, 3/4 है, इसका मतलब हम x टू दी पावर 3/4 माने इसको ऐसे लिखेंगे 3 होल टू दी पावर 1/4। तो इसका पावर अगर 1/4 बोथ साइड में लेंगे, सो इट कम डाउन टू 1/4, सो 4 कट दो। So ultimately it comes down to x to the power 3/4 is equal to y, ऐसा कुछ आएगा। तो ये y का जो वैल्यू बनेगा माने x to the power 3 का वैल्यू एक्चुअली y है, तो y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। So it comes down to y। अभी बेस सेम हो गया, so it comes down to x to the power 4/3 minus 1 और ये हो जाएगा y to the power 3/4 minus 1। तो इसका वैल्यू आ जाएगा x to the power 1/3 और इसका वैल्यू हो जाएगा -1 टू द पावर 1/4। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड वाज दिस, तो अल्टीमेटली वो प्रूव हो चुका है। सो दिस इज ऑलरेडी प्रूव, ये प्रूव ऑलरेडी हम लोग लेके चला है। सो दिस इज द वे you need to solve such kind of problem based on the indices। তো এই প্রবলেম গুলো অবশ্যই you must go through this particular problem। नेक्स्ट दिन इस तरीके का और भी 7-8 कम से कम मिनिमम 8 to 9 10 problems I will do this kind of tricky jugglery on the indices के ऊपर और भी सारे प्रॉब्लम दिखा देंगे। ओके, चलो बाय। इस तरीके का प्रॉब्लम नेक्स्ट दिन दिखा देंगे, इंडिसेस खत्म कर देंगे नेक्स्ट दिन।